ہاں محمود صاحب، ایک تو مجھے یہ جاننا تھا آپ سے کہ جو آپ یہاں سبجیکٹس پڑھاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا، جی میں فی الحال حدیث میں الصحیح لمسلم. کہاں سے بول رہے ہیں؟ صحیح لمسلم، یہ یہ دونوں جلد ہیں، دونوں ہی میں پڑھاتا ہوں. جی ہم آفس میں آ رہے. ٹھیک ہے. اور ایک سبجیکٹ ہے جی اصول الفقہ. جی ٹھیک ہے. اور یہ آپ بنگلہ لینگویج میں پڑھاتے ہیں یا یہاں میڈیم بنگلہ ہے. میڈیم؟ اچھا محمود صاحب، آپ چونکہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی ہیں جی جی. تو آپ سلیبس سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے. اور تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے مسلم مدرسہ ماڈرنائزیشن کہا جاتا ہے، تو اس کے تعلق سے سلیبس وغیرہ میں کیسے ماڈرنائزیشن ہوا ہے کچھ وقت میں؟ اچھا، اس جی وقت جی یہ سلیبس جو ہے ان کتابوں کا طویل ہے، بہت لمبی ہے. جی جی اس لیے ہم منتخب کر کے کچھ حصوں کو جی پڑھاتے ہیں جی جی وقت کے تقاضے کے مطابق. جی جی اور یہ سلیبس جو یہاں فی الحال چل رہا ہے، جی یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں MTH میں یہی پڑھایا جاتا ہے. جی صرف دو ہی جگہ یہی ہے اسلامک تھیولوجی، ایک علی گڑھ اور ایک عالیہ. ٹھیک اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ٹھیک ہے. تو جو پڑھانے کا اپروچ رہا ہے آپ لوگوں کا، اس میں کیسے ماڈرنائز کیا ہے آپ لوگوں نے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر اب سے 30 سال پہلے آپ لوگ جو پڑھتے تھے، اب 30 سال کے بعد میں آپ لوگوں نے اس وقت جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذہنیت کو جانتے ہوئے، ماحول کو بھی سمجھتے ہوئے کہ ماحول کس طرح کا ہے، تو کس طرح سے ماڈرنائز کیا ہے؟ کیسے کنوے کرتے ہیں اب اپنا میسج؟ کیسے کلاسز میں ان سب چیزوں کو بتاتے ہیں؟ ہم لوگ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، مثلا کسی حدیث کو لے کر کبھی اس کے تعلق سے سائنسی کوئی بات اگر ہے، جی جی یہ ماڈرنائزیشن ہے. جی. پہلے ایسا نہیں پڑھایا جاتا تھا. جی جی کوئی بات کا تعلق اگر سائنس سے ہے، پھر اس کے ساتھ ملا کر کے حدیث کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو سائنس کے مطابق ہے. یعنی ترقی سائنس کی وجہ سے جی ہماری اسلام کی صداقت بڑھ رہی ہے. تو کوئی ایگزامپل دیں گے اس انداز سے جیسے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے جی تو پھر اس کو 7 مرتبہ دھونے کے لیے کہا، جی اور 1 مرتبہ مٹی سے اس کو صاف کرنے کے لیے، مٹی لگا کر، جی جی صابن وغیرہ نہیں. ہاں تو اس کے اوپر جو ہے ریسرچ ہوا جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے مانجنے کے لیے کیوں کہا ہے. جی تو ریسرچ میں نکلا ہے کتا کا جو لعاب ہے، جی جو لالا ہے، جی جی اس میں زہر بہت زیادہ ہے. جی صرف 1 بار 2 بار دھو دینے سے وہ جو ہے ختم نہیں ہوتا. جی جی اگر مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو پھر اگر کوئی پانی پیتا ہے اس لعاب سے جی جی تو اس کو جو ہے وہ کتا والا روگ بیماری آ جاتی ہے، جس کو ہمارے بنگلہ میں جلاپن کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کر لوں گا یہ اس کا اچھا. مطلب کیا ہے. جی تو ایسا بیماری آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جی. مٹی ہی سے مانجنے کے لیے، ہاں اس کے لیے سائنس نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ مٹی میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. جی وہ تمام تر جو ہے جیوانو کو، جی جو بیکٹیریا ہے، جی جی
यानी खराब बैक्टीरिया है हाँ उनको खत्म कर देता है। ये साइंसी रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल पूरी उतरी। जी जी इस मुनासबत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बढ़ता गया। जी इसी तरीके से हदीस में आया है, मक्खी अगर किसी बर्तन में गिर जाए जी। तो उसको पूरा डूबो दो पानी में, जी फिर उसके बाद उस पानी को पिया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि उसके एक पर में जी बीमारी है और वो बीमारी को पहले डाल रहा है, हाँ हाँ और एक पर में उसकी शिफा है। ओ अच्छा तो बीमारी डालने के बाद फिर शिफा। जी जी हाँ हाँ इसको साइंस ने भी, मेडिकल साइंस ने भी कबूल किया है। बात जी। बिल्कुल सही है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मेडिकल साइंस की हैं, ये आप लोगों ने बिल्कुल ऑथेंटिक रिसर्च जहाँ पे भी हुई है उसको मतलब उसको इंक्लूड किया है सिलेबस में? ये बताया है कि फला नहीं, उसको यूनिवर्सिटी। सिलेबस में नहीं लाया गया। हम लोग दिगर अच्छा, ये आप एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं हाँ, जब क्लास के अंदर। इधर उधर की किताब पढ़कर हम लोग उसको अच्छा, अलग से और उसके इसके रेफरेंस भी ठीक से देते हैं आप, मतलब कि भाई यहाँ पब्लिश हुआ था, आपने यहाँ देखा, हाँ, इस तरह से बिल्कुल हाँ, ठीक ठीक जी। और अब थोड़ा सा मैं जो मौजू है मैं इस तरफ लाना चाहता हूँ आपका। जैसे कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले मेरा एक दोस्त मेरे साथ में आया था, तो वो यहाँ कलकत्ता का है, जर्नलिस्ट है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम जो है यहाँ पहले आए हो? तो मैं कहा नहीं, पहली मरतबा मैं आया हूँ। तो ये सुन के मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो हम लोगों की जो इंडियन कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर से, तो उसमें इतना ज़्यादा फासला है कि मदरसों में कभी मतलब एक जर्नलिस्ट जो है मदरसे में नहीं आया। ये मुझे चौंका की बात थी। समझा नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हिंदू लोग जो हैं, हिंदू भाई जो हैं हमारे, क्या वो भी यहाँ विजिट करते हैं? जैसे किसी यूनिवर्सिटी से आए हों बच्चे, उन्होंने आके विजिट किया, देखा कि भाई कैसा चला है मदरसा, आप लोगों के पास आए, आप लोगों ने उनको विजिट किया, यहाँ पे घुमाया। हाँ, ये भी रिपोर्टर आया है। ये भी इससे पहले रिपोर्टर आया है, मेरे सामने आया है। हाँ। मुझसे उन्होंने बातें की, गुफ्तगू की जी जी कि यहाँ तरक्की कैसी हो रही है जी पढ़ाई का, हाँ क्या लड़के और लड़कियाँ भी तरक्की कर रही है क्या। हाँ हाँ तो मैंने उन्हें बताया कि पिछले ज़माने में हमारे इस सब्जेक्ट पर पीएचडी नहीं होता था, इस वक्त तो पीएचडी भी चल रहा है। जी जी समझे? जी। तो हमारे यहाँ के लड़कियां भी इस सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे वो अक़लियत की मिक़दार में है। ठीक जी। अच्छा, जैसे आप ही के एक कुलीग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर डिस्कशन में रहा। तो खैर एकदम से वो साइड लाइन हो गया, लेकिन एक वक्त में बहुत डिस्कशन में रहा, जैसे वो है ट्रिपल तलाक का मसला। अच्छा अच्छा। जो आप जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि जो ट्रिपल तलाक है वो एक सिटिंग में, यानी जो पुराना सिस्टम था, हाँ, एक सेकंड, वो तलाक हो जाता है। मतलब जैसे किसी शौहर ने एक ही बार में कहा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। और बावजूद इसके है ये, जब तक कानून बन गया है इंडिया में, पार्लियामेंट से पास हो गया है कानून, उसको बाकायदा क्राइम के वो कैटेगरी में आ गया है। तो ये एक चीज़ है जो मॉडर्नाइजेशन, मदरसा का जो मॉडर्नाइजेशन है उससे बिल्कुल टकराती है कि एक तरफ तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये पार्लियामेंट ने जो है कानून पास कर दिया, और दूसरा यहाँ पे ये ओपिनियन है, और ये ओपिनियन अगर इतनी मतलब वाज़ेह है तो फिर इस पर कोई तहरीक इस तरह की क्यों नहीं है खड़ी की जाती है उलमा की तरफ से कि भाई
सड़कों पर आया जाए, बात की जाए, या जो भी मसले का हल जाए, जिस अंदाज से भी निकाला जाए। तो क्या आपके व्यूज़ भी वही हैं जो आपके कोलीग के हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है एकदम जो एक ही सिटिंग में दे दिया हस्बैंड ने? हाँ, मैं भी इसी के कायल हूँ, और इस पर सहाबाए किराम का इजमा हो चुका है कि ट्रिपल तलाक एक मजलिस में अगर दिया जाए तो वो तलाक वाक़ई हो जाता है। जी। ये हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से सरासर इस्लाम का खिलाफ एक नजरिया काम कर रहा है। जी, ठीक है। जैसे आप ये हिजाब के मसले को लेकर देख रहे हैं, जी जी, बिल्कुल। हाँ। सरासर इस्लाम के ऊपर जुल्म है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? अगर कोई जबरदस्ती इस कानून को लागू कर दे हमारे ऊपर, जी, तो इससे हमारा नुकसान होगा, इस्लाम का, मुसलमानों का। हाँ। अब एक ये बात बताइए मुझे, ये अच्छा खासा ऐसा हो गया ट्रिपल तलाक वाला कानून जो है पास हुए हुए, कितना नुकसान आपने देखा है मुस्लिम कम्युनिटी में जो हुआ? ये तो इस वक्त ऐसा नुकसान है, मुसलमान हुकूमत की कानून को लेकर के औरतें खास तौर से ये लिखे पढ़े हुए नहीं होते हैं, जी, और वो उसके सपोर्ट में भी शायद सुना है, पेपर वगैरह में देखा है, जी, कुछ औरतों ने इसको सपोर्ट किया है, कुछ नहीं, जी, सब में नहीं। जी, अब ऐसा मसला है, हमारे इलाके की अवाम जो औरतें हैं जी, वो बिल्कुल अनपढ़ होती है। जी, जी, जब शौहर तलाक दे देता है 3 तलाक, जी, उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। अब शौहर भी वैसा ही जाहिल है, जी, वो भी उसको लेकर जी, रहती है। हाँ, हाँ, इसी तरीके से साल हर साल गुजर जाता है। एक वाकया मैं आपको बताऊं। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको यहाँ टोकने के लिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपको यहाँ पे अच्छा, आपकी बात ठीक है, टोकने के लिए। बोलिए। तो क्या जो उस तरह के मर्द और औरत रह रहे होते हैं, क्या उनका जो ताल्लुक है वो हराम होता है? बिल्कुल हराम, वो गुनाह कबीरा होता है, जी। जबकि इजमाए सहाबा का खिलाफ है। और ये गुनाह कबीरा हो रहा है समाज में हमारे? समझ में हो रहा है। एक वाकया मेरे पास आया था यहाँ आलिया में, जी। एक साहब हमारे डानकोनी का जी, जी, आकर कहा कि मैंने अपने बीवी को 3 तलाक दी है। जी, जी, अब लेकर के वो बीवी है, वो गैर मुखल्लिदीन, वो 3 तलाक को 1 तलाक मानते हैं, ये भी समझ लीजिए, इसमें इख्तिलाफ है। हाँ, हाँ, एक वक्त में अगर एक सीटिंग में 3 तलाक दिया जाए, वो लोग इसको 1 मानते हैं, वो 3 नहीं मानते हैं। जी, वो गैर मुखल्लिदीन अहले हदीस, जी, जी, वो लोग मानते नहीं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा 3 तलाक देकर मैं बीवी से अभी 7 साल 8 साल हो गया, गुजर गया। हाँ, हाँ, उस वक्त मैं नमाज वगैरह नहीं पढ़ता था, जी, अब मैं नमाज वगैरह पढ़ रहा हूँ, हाँ। लेकिन बुरी बुरी ख्वाबें मेरे ऊपर आ रही हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत बुरी बुरी ख्वाब, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, अल्लाह ने तलाक देने के बाद फिर उसका इस्लाही इक़दाम भी रखा है, उसको इस्लाह करने के लिए क्या करना होगा। हाँ, वो क्या है? वो तलाक देने के बाद अगर उसी बीवी को रखना चाहे हाँ, हाँ, तो इसके लिए कुरान की हुक्म है, जी, उसके लिए हलाला का हुक्म है। जी, जी, वो मसला आपको मालूम होगा। थोड़ा सा और समझा दीजिए, ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा। मसला हलाला, जी, जी, ला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। हाँ, हाँ, आप तो मॉडरेशन के एतबार से आप दूसरा सरकार की तरफ जो ये कर रहे हैं, ये हमको तो दूसरा ख्याल में आ रहा कि सरकार की तरफ से आपको ये नहीं है, तो मैं ये आप जिस काम से आए हैं, हाँ, हाँ। ये तो क्या बीजेपी सरकार के तो जासूस एतबार से आप नहीं आ रहे हैं ना? नहीं, अब जैसे ही तो सवाल भाजकर जिधर जा रहे हैं। नहीं, अगर मैं कहीं से आया भी होऊंगा हजरत, हाँ, तो मेरा भी, आपका भी, और हम तीनों का बिलीफ है। थोड़ा ये आप कीजिए, जब बात कर लेंगे उसके बाद थोड़ा इससे। अरे चलने दीजिए इसको। नहीं, नहीं। अरे ये गुफ्तगू अच्छी हो रही है, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप सुनिए। हम सब अल्लाह को मानते हैं, ठीक है? खौफ जो है वो सिर्फ अल्लाह का है, और किसी का भी खौफ नहीं है। ना आप ये करके ना, ये जैसे आ रहा है जी। ठीक है,
जी। तो 3 तलाक की तरफ ट्रिपल की और तरफ अरे चला ये गया। इसके बाद तो ये जो मसले हैं हाँ, इनकी तो आप सफाई होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हजरत मॉडरेशन में जो मासा के ये उस ये रिसर्च में आप है ना जी। आप किस एतबार से कर रहे हैं? अरे मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो मैंने बहुत सारे मदारिस में मुझे लिखना था कि मॉडर्नाइजेशन और मदारिस में क्या अच्छा, ठीक कैसे है, हो रहा है। आप- तो अब मैंने ये मदरसा चुना, अच्छा। तो मैं उसी के ताल्लुक से बात कर रहा अच्छा ठीक है। जी, जी। जी बोलिए हूँ जी। आप हलाला के ताल्लुक से। हाँ, हलाला का मसला ये है, शरीयत ने शौहर पर एक पनिशमेंट रखा है कि वलन तलाक के मसले में अब गज़ुल मुबाहात कहा गया है, यानी शरीयत ने मजबूरी के तौर पर इसको रखा है। मसलन किसी के बीवी ने जिना कर लिया, उसने देख लिया, जी या बीवी ने किसी उसके अपने जो है महबूब के हाथ पकड़कर यहाँ से निकल गई, तो वो क्या करेगा? उस वक्त मजबूर है, उसको तलाक देना पड़ेगा। वरना तलाक अब गज़ुल मुबाहत का मतलब यह है सबसे ज्यादा घटिया जायज तरीका। जी जी इसको शरीयत ने इसलिए रखा, ये बचाव का एक तरीका है। आज हिंदू समाज में जो है सुसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, जी हमारे समाज में सुसाइड ज्यादा नहीं होता, इसी वजह से तलाक का मसला है। हाँ। चलो ठीक। तो खैर हलाला ये है। जी, जी। फिर शौहर और मियाँ बीवी में एक मोहब्बत पहले ही से थी। जी जी अब ऐसा होता है कि शौहर चाहता है कि फिर पहली बीवी को वही बीवी को ले लूं, तो शौहर के ऊपर एक पनिशमेंट है जी जी कि फिर अपने उसी बीवी की दूसरे से निकाह कराओ। जी जी ठीक है। वो अगर निकाह में छोड़ देती है खुद से, जी जी फिर तुम निकाह कर सकते हो इद्दत के बाद। दोनों में इद्दत जो है जरूर होगा, जी जी लेकिन किसी वक्त वो उनको अपनी बीवी मिल जाएगी, समझे? एक सूरत शरीयत ने रखा है। ये असल में पनिशमेंट शौहर की है, बीवी की नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा हजरत, जी। पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी भी है। उन लोगों ने कहा कि अब हलाला तो हराम है। उन्होंने ऐसा कहा, क्या क्या गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत है। एक जी 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 कुरान फाइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। जी। कुरान शरीफ में है, अगर 3 तलाक दे दिया, हलाल के अलावा उनके साथ रहना हराम है, करना ही होगा। इसी तरह हदीसे उसैला है, वहां पर हुजूर बुखारी शरीफ में भी रिवायत है कि 3 तलाक के बाद हलाला जब तक नहीं हुई, हुजूर से उसकी इजाजत नहीं दी है। यार जो बोलता है गलत, सरासर गलत है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हलाला हुआ है आपको? हाँ। जी। अच्छा ठीक है। वो हदीस से जी सही जी है। जी तो अब मसला, अब ये एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है हलाला के खिलाफ, सुना होगा आपने, वो पता चला, वो अलग है। क्या ये जो हलाला है आपने देखा कहीं कहीं समाज में हुआ है, और किसके साथ निकाह किया गया, क्या कुछ इस तरह के केसेस हैं आपके नॉलेज में? है ऐसा नॉलेज? सुना है। अच्छा ऐसा, और मेरा एक वाकया बताऊं सहारनपुर का। मेरा एक उस्ताद था, जी तो उनका निकाह हुआ था, बच्चा वगैरह नहीं हुआ था। जी अब किसी ऐसा मसला आ गया, किसी ने उनको हलाला करने के लिए अपने बीवी को दे दी, निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद फिर बच्चा हो गया, समझे? हाँ हाँ फिर हजरत ने छोड़ा नहीं उनको। जी फिर वो लोग आए जी कि हजरत आप छोड़ दीजिए, जी जी मसला तो खत्म हो चुका है। हाँ हाँ हजरत ने कहा कि उनसे पूछो, जी वो अगर जाना चाहती है अभी मैं तलाक देकर उनको साफ कर दूंगा। हाँ हाँ अब बीवी से जाकर पूछा जी कि चलो तुम, हाँ हाँ उन्होंने कहा कि ना पहले शौहर के पास नहीं जाऊंगा, इनके पास रहना है, इससे खुश हूं मैं। ये भी मसला हुआ है, हाँ, हाँ। बोले वरना कि दूसरा मसला ठीक है। अब दो तो मसले हो गए, ट्रिपल तलाक और हलाला के ताल्लुक से। हाँ। ये आप लोगों ने अपनी बात एकदम से अच्छी से रखी है। यह ऐसा होता है, लेकिन एक बात है, यहाँ अब इस मसले पर लोग जो है पैसे ले रहे हैं, ये इनकामी सूरत निकाल रही है। मतलब थोड़ा सा मतलब यह है कि आपका वो मसला हलाला के लिए मुझे कहा गया है, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। हाँ, हाँ। मैंने कहा कि ठीक है मैं हलाला कर दूंगा, एक रात रह जाऊंगा,
लेकिन मुझे 10,000 चाहिए, हाँ हाँ महर भी देना है। हाँ हाँ मैंने 10,000 ले लिया और कर लिया। ये जो है, इसी वजह से उन्होंने कहा होगा ये ठीक नहीं है, ये हराम है। बंगाल में होता है ये? यहाँ पर बंगाल में होता है? यहाँ क्या सब जगह होता है। अच्छा, अब वो क्या सवाल था मॉडर्नाइजेशन के ताल्लुक से, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब जो हिजाब वाला मामला है, जो अब जी। जाहिर है कि आपके इस वक्त जो है उसमें तो ये जो हिजाब है, थोड़ा सा आप खुद ही समझा दीजिए क्या है हिजाब। हिजाब का ये अरबी शब्द लफ्ज है, जी। इसका माना पर्दा। जी शरीयत इस्लामी ने मर्द के अलावा औरतों पर एक जायद फर्ज और कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया है, जी वो है हिजाब। जी जी जैसे मर्द में ये हमारा 5 ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जी और औरतों के लिए एक पर्दा है। जी जी समझे, उन पर जायद, ये भी उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है और पर्दा करना पड़ेगा। पर्दे से मुराद ये है कि तमाम ढंगना पूरा नकाब या वगैरह, या सिर्फ इस तरह के स्कार्फ से भी वही? न, सिर्फ यही मुराद नहीं है। पर्दा से मुराद ये है कि जी औरतों का जो ऊपर से नीचे तक इसको भी ढांकना, जी सतर और साइज, समझे, जी दोनों ढांकना। जी क्योंकि औरत के साइजों से जो है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। साइज क्या? साइज में टाइट फिट ना हो। जैसे वो टाइट फिट मतलब ये जी, जी, जी। लिबास पहनते हैं, जी, जी। जिसकी वजह से उनका वो जीनत जाहिर होता है। जी जीनत को जाहिर ना करना, यह है असल पर्दा। हाँ। सबसे बड़ा पर्दा है आंख का पर्दा, हाँ, सबसे बड़ा पर्दा है। और वो मर्दों के लिए? वो मर्दों के लिए है ही, मर्दों के लिए है सतर नाप से लेकर घुटने के नीचे तक, जी। और औरतों के लिए सर से पैर तक। अच्छा ठीक है। अब ये है, ये मसला फिर इख्तिलाफी है। कुछ किसी ने कहा कि ये और ये दोनों किलाई, ये दोनों छोड़कर, जी जी लेकिन इस सिलसिले में अहनाफ का मसला ये है कि फितना चेहरे से होता है जी और इससे भी होता है, इसको देखकर भी उसकी तरफ रग़बत बढ़ती है। हाँ हाँ लिहाजा इस वक्त का जो हाल है, इस हाल के एतबार से ये भी बंद करना चाहिए। हाँ हाँ इस वजह से अहनाफ का जो मसला है, सर से लेकर पैर तक बिल्कुल ढका हुआ हो, हाँ कुछ भी नजर न आए। ठीक है। मगर क्या इस दौर में ये मुमकिन है, अगर इस तरह से, अगर इतनी सख्त कवानीन के हिसाब से अगर हम सोसाइटी बिल्डअप करेंगे अपनी, तो कितना शार्प डिवीज़न हो जाएगा। और देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट बात, जो है इस्लाम का कोई कानून सख्त नहीं है, जी ये तो कॉम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है ना। जी जी अब हम चलते नहीं, हमारा कल्चर नहीं है। जी जी अगर कल्चर हो जाए तो फिर आसान है। सऊदी में जाइए, देखिए, जी। यानी हर एक का क्या ही लिबास है। लेकिन सऊदी का आपने जिक्र किया। नहीं। जी जी आप इस बात वजह से कीजिए। जिक्र किया जी कि वो कल्चर कर रहे हैं, हम लोग तो कल्चर नहीं करते हैं। नहीं, मैं सऊदी के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब तो वो अपना कल्चर धीरे धीरे तब्दील कर रहे हैं। और इस्लाम के ऊपर दुश्मनान इस्लाम जो है, ये आयब लगाते हैं उनको, औरतों को घर में रखा है, लेकिन औरतों को तो हज में जाने के लिए भी इजाजत दे रखा है, औरतों को बाजार में भी जाने के लिए इजाजत दे रखा है, हाँ। औरतों को स्कूल में भी सर्विस करने के लिए इजाजत दे रखा है, लेकिन बेपर्दगी नहीं। ठीक है। जैसे आज मैं टेलीग्राफ अखबार देख रहा था, जी। जो आपके शहर का है, उसके फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ थी कि कोई बिहार का शायद इंसिडेंट होगा कि कोई लड़की थी, वो बैंक गई, हिजाब पहनी हुई थी, और वो एटीएम से विड्रॉ करना चाहती थी पैसा, तो उससे परमिशन नहीं हुआ। दैट्स वाई वो जो खबर है वो पेज 1 पे, वो फ्रंट पेज पे आई है उस पर। तो अब मसला जो है वहाँ पर बैंकों में या सिक्योरिटी वाली जगहों में ये होता है कि जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं,
सीसीटीवी कैमरा जो है वो फेस को ही पहचानेगा, वो नकाब से तो पहचान नहीं सकता। तो वहाँ पे रिमूव करने को अगर किसी को कहा जाए नकाब, तो आपकी नज़र में क्या सही है और गलत क्या है? और इस किस्म की ज़रूरत, जी ये ज़रूरत शरीयत इस्लामी में जायज़ है। अल-उज़्र तुबीहुल महज़ूरात एक उसूल है, जी उस उसूल के मुताबिक, यानी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आइन वहाँ नहीं चलेगी। अच्छा जैसे हज के लिए तस्वीर खींचना, हाँ हाँ ये ज़रूरत है, हाँ हाँ वो औरत हो या मर्द हो, सबके लिए खींचना पड़ेगा। हाँ हाँ तो ये जो मसला आपने बता रहे हैं, ये भी ज़रूरत है। ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत को अच्छा पूरी किया जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ हाँ। कि आपने सुना होगा पिछले दिनों में मुस्लिम सोसाइटीज़ में एक टीवी सीरियल तुर्की का बहुत मशहूर हुआ, अर्तुगरुल। सुना है आपने उसके ताल्लुक से? अच्छा अच्छा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, मैं कुछ उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। वो जो तुर्क लोग हैं तुर्की के, ये आप सुने हैं, तुर्की में एक टीवी सीरियल अर्तुगरुल सीरीज करके आया, बच्चे मोबाइल पे बहुत देखते थे पिछले दिनों में, अभी भी चल रहा है वो। उसका अगला हिस्सा उस्मान, खिलाफत उस्मानिया किस तरह से कायम हुई, उसके ताल्लुक से। तो हमको देखा नहीं, सुना है अक्टूबर वगैरह बच्चे बोलते हैं, बस हमने सुना नहीं। बच्चे बोलते हैं, सुना है, हाँ ठीक है। तो बच्चे देखते भी होंगे, ज़ाहिर है इसीलिए बोलते हैं। तो उसमें जो है औरतों को दिखाया गया है कि वो बराबर की शरीक हैं, पर्दा उस हिसाब से नहीं करती है, बाकायदा चाकू रखती है, कबीले की सरदार भी बनती हैं वो। नहीं देखिए, वहाँ जो सीरियल होती है, ठीक है, फिल्म बनाए तो किसी का जो हकीकत में है या नहीं वो तो पता नहीं। इस्लाम में तो सब जो चीज़ ज़रूरत है वही है, उसके बाद अगर वो ज़्यादा करे, ज़्यादती करे, उसमें तो इसमें कोई धर पकड़ नहीं है, ठीक है। शरीयत उसको नहीं माना जाएगा और तो हुक्म हकम नहीं माना जाएगा। अच्छा, जैसे आप जो बोल रहे थे ना जी कि मॉडरेशन में आप बोल रहे थे हमेशा पर्दा पहन करके हर जगह कैसे चले, जी, जी। मैं कहता हूँ देखिए, पंजाबी सिख लोग, जी ठीक है, वो लोग तो हमेशा पगड़ी पहन कर रहते हैं, जी जी, और एक कृपाल रखते हैं, यानी तलवार। हाँ। लड़कियां वो क्या 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 करती हैं उनको, तो अगर वो रख सकती है और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया उनको परमिशन देते हैं, अगर हम लोग को क्यों नहीं होगा? हम अगर इस पर क्या है मॉडरेट करें, यानी हम लोग अगर इसके ऊपर चलने की आहत कर ले, चल सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है? ठीक है ठीक है। और जो अभी आपने कहा कि चेहरे का भी, चेहरे से अट्रैक्शन होता है, तो आपके यहाँ पे जो फीमेल स्टाफ है जो आपके यहाँ मदरसे में, क्या सब लोग नकाब लगाती हैं या बगैर नकाब के भी हैं? नहीं, सब लोग नहीं। तो आप लोगों ने कभी इस पे कुछ कहा मैनेजमेंट को या किसी को कि भाई इनको लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का तो यकीन है कि भाई नहीं, अक्सर यहाँ लगाते हैं, माने आने तक, जब क्लास में बैठ जाती है थोड़ा खोलते हैं, उसके बाद जो निकलती है अक्सर। अच्छा ठीक है। और एक छोटी सी बात और भी ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से, जैसे आपने कहा था कि भाई ट्रिपल तलाक, बहुत से लोगों ने ये कहा कानून बन गया, बड़ा नुकसान हो जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी को। जाहिर है यही था ना कि भाई कानून बन गया, ट्रिपल तलाक जिसने दे दिया उसको तो जेल जाना पड़ेगा, ये कानून है ना? हाँ, ये खिलाफ इस्लाम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था, जी जी, लेकिन उनकी बात भी नहीं चली। नहीं तो मैं आपसे यही जानना चाहता था कि अच्छा खासा वक्त हो गया कानून को पास हुए, तो आपने पास हो गया है। हाँ नहीं तो वो किस तरह का पास हुआ है कि जो शौहर जो है उसको तलाक देगा तो उसको 3 साल के लिए जेल, ये कोई कानून है? नहीं, तो अभी तक मैं यही सोच रहा था, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि कितना नुकसान हुआ है, आपने कितने लोग शौहरों को जेल जाते हुए अभी तक दिखा? मतलब उस वक्त यही कहा गया था कि घर बिगड़ जाएंगे, शौहर जेल जाएंगे, तो थोड़ा सा बताइए आप, मुस्लिम समाज में कितने शौहरों को जेल जाते हुए आपने देखे? नहीं, अभी ये हमारे बंगाल में तो कोई ऐसा खबर नहीं है कि जेल में गया, लेकिन हमको खबर है असम साहब, तो खबर है ये कि किसी तरीके पर जैसे तलाक होती थी, इंस्टेंट 3 तलाक उन्होंने यूज कर दिया, और मतलब शरीयत के लिए ऐसे वो लोग तो उन लोगों के अंदर हुर्मत की जो निस्बत कायम हो गई,
तो आखिर उन्होंने चुप हो गया। शरीयत के जो कानून है उसके ऊपर ही अमल करके क्या जरूरत है, हम अगर उसको जेल भेजेंगे तो हमारे तो औलाद और हमारी संसार सब बर्बाद हो जाएगी, कौन खिलाएगा, कौन ये करेगा। लेकिन शरीयत में सिस्टम क्या है, तलाक की अगर इद्दत होती है, इद्दत के वक्त में पूरी जिम्मेदारी है शौहर पर है, वो खिलाना, रहना, सहना सबका इंतजाम उनके जिम्मे पर आता है। इसी तरीके पर उसके अगर शादी हो उसके बाद हलाला कराना है, सब इनके जिम्मा होता है, ये लोग ये करते हैं, इंतजाम करते हैं। तो इधर देख करके तो अक्सर हाँ मॉडरेशन जो जिन लोग इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम के साथ किसी तरीके पर कोई निस्बत नहीं, कोई या टीवी या किसी इसमें दिखाया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक होने की वजह मैंने इंग्लिश का हराम करने की और कानून बनने की वजह से उन्हें लोग क्या मजाक कर रहे हैं और बहुत ही जो है क्या खुशी मना रहे हैं। ये तो उन लोगों का मैंने बुर्का पहन करके उन कोई हिंदू लोग या कोई बहुत सारे ऐसे नजदीक पेश है या किसी को पैसा दे करके या उसी के माइंड जो है सेटिंग करके इस तरीके पर कराया गया है। लिहाजा अगर उसमें अगर उसको मान लेता तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी उसको मान ले, कोई नहीं माना, हकीकत में कोई नहीं माना। हाँ कई किसी जगह कुछ बोल दिया होगा, लेकिन घराना में, बंगाल में, इस तरह हर पूरे सूबा में, पूरे देश में इस तरीके पर है। शरीयत के जो कानून है उसके लिए मानने के लिए मर मिट के तैयार है, लेकिन वो जो कानून बना है वही रहेगा और वही क़यामत तक चलेगा। तो हाँ एक सेकेंड, हजरत ने कहा कि मर मिटने को तैयार है, तो हजरत क्या किया आपने अभी तक? हमारे जमीयत उलमा हिंद पूरा तहरीक अभी तक चालू है। अच्छा ठीक है। जमीयत उलमा हिंद सुना है ना, सिद्दुकुल्लाह चौधरी साहब हमारे यहाँ सदर है, पूरा जब भी उन्होंने एक किया इसी वक्त से अब तक जारी है। अच्छा ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? मसला चल रहा है। एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, पिछले जमाने में हमारे इलाके के या बंगाल के, बांग्लादेश वगैरह के लोग ज्यादा शादी करते थे, क्योंकि शरीयत में 4 शादी की इजाजत है जी। लेकिन अब ऐसा है सबका एक ही शादी है, 4 बिल्कुल ही नहीं है, किसी का 2 हो 1 आध। आप दोनों की भी एक एक ही है? वैसे ही है। आप दोनों की भी एक एक ही शादी हुई है? हाँ, एक। और इस वक्त एक ही तो अच्छा है। इस वक्त तलाक का जो मसला हो रहा है, लोग तलाक बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, कम ही दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मजबूरी की मांग तलाक दे रहे हैं। इस वजह से ये खबर अब तक सुनने में नहीं आई कि कौन जेल गया है इसकी वजह से क्या फसादात हुई, ये खबर सुनने में नहीं है। सही बात है। अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा आपने सिलेबस का जिक्र किया था कि आप साइंस जो साबित कर रही है हदीसों को सही, इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं, और भी क्या क्या मॉडर्न चीज़ें हैं जो मतलब मॉडर्निटी के हिसाब से सिलेबस में या अपनी क्लास में आप लोग बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, उसके कवानीन शरीयत के हिसाब से है या नहीं है, टकराती हैं या नहीं है, जो भी कुछ है, तो आप लोग कभी समझाते हैं बच्चों को इस ताल्लुक से, तो किस तरह समझाते हैं? जो भारत के कवानीन है, संविधान है, इसमें तो खुद मौलाना हिब्बुर रहमान जमीयत उलमा हिंद के शरीक थे। इस वजह से इस्लाम के खिलाफ तो मैं हो ही नहीं सकता है। संविधान तो बन गया है सबके लिए। जी जी। लेकिन यहाँ इस किस्म का दर्ज नहीं दिया जाता है जो हिंदुस्तानी संविधान वगैरह के ये राइट्स हैं। अलबत्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ इस सिलसिले में कुछ पढ़ाया भी जाता था पहले, अभी है वो जदीद फिक्री मसाइल, इसलिए बस यहाँ घुसाया गया है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे PhDs भी जो है बच्चे कर रहे हैं, तो जो वो प्रपोजल लेकर के आते हैं अपनी वो PhD वाले से पूछना अच्छा होगा। नहीं, फिर भी थोड़ा आपकी नज़र से गुजरा होगा, तो
उसमें किस किस तरह के टॉपिक वो लोग जब लेकर के आते हैं तो आप लोग उन लोग को कैसे गाइड करते हैं कि भाई ये टॉपिक गाइड असल में हम लोग तो पीएचडी पढ़ाते नहीं, या हम लोग पीएचडी स्कॉलर नहीं हैं, जी समझे, ये बात जी। है। और गाइड इस वजह से ज्यादातर शख्सियत पर पीएचडी होती है। जी जी ये टॉपिक होती है जैसे मकाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि समझिए, या बंगाल में कितने मुफस्सिरीन थे उनकी अहवाल, बंगाल में मुहद्दिसीन कितने थे इनके अहवाल, इन सब बातों पर। दारुल देवबंद के मुफ्ती जकीर हसन साहब उनके नाम पर भी पीएचडी हुई है। जी जी। और इसी तरीके से लोग कर रहे हैं, शख्सियत पर ज्यादा है। अच्छा हजरत, मैंने आपके ताल्लुक से सुना कि आप फतवा भी इशू करते हैं जमात इनकी तरफ। हाँ, ये महकमा शरिया का अच्छा रईसुल मुफ्ती है अच्छा जमीयत उलमा हिंद की जानिब से, जो महकमा शरिया जी। मगरबी बंगाल का बनाया गया है, उसके जो है रईसुल मुफ्ती हैं। और ये दामाद भी है हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के। ओके, क्या बोले? मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने हाल फिलहाल में जो कुछ फतवाज कुछ जो फतवा दिए होंगे, कुछ आपको क्वेश्चन आए होंगे, उसके जवाब दिए होंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कुछ। सबसे ज्यादा हम लोग इस काम में आदि मुहिम में लगे हुए हैं, मियाँ बीवी इख्तिलाफ से दूर करें। अच्छा, मियाँ बीवी में दूरी बन रही है, ये किसी वजह से इसको मार पिटाई की या इनके निकाह खराब है, दोनों तरह कोर्ट में गए जी इस तरीके पर दोनों के अंदर जो है ताल्लुक खराब होने लगे। तो उस वक्त हमने क्या क्या दोनों को बुलाया, हमारे कमेटी है, गाँव को बुला करके दोनों को समझा बुझा करके अक्सर 98% हमने उनको मिला दिया, और पुराना जो ताल्लुक को खराब हो चुका था उनको फिर हमने बसाया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके पर अगर किसी ने तलाक दे दी, एक तलाक दी, तो उससे शरीयत के मसला में एक तलाक रजी हुई तो फिर मिला दिया, एक तलाक बायन हुई तो उसको फिर शादी करके उनको क्या कर दिया। और हमारे यहाँ जो अगर कोई तलाक देते हैं कोई लड़का, तो एक तलाक बायन उसके ऊपर और किसी तरीके पर जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ाते। इस तरीके मसाजिद का मसला, मस्जिद के वक्त का मसला ये है, वक्त जो है वक्त की जो पुपाटी है, तो उस पुपाटी को क्या करते हड़प करके रखा है, या मस्जिद की जमीन उसके वालिद साहब लिख करके दिए हैं, और उसके जो वालिद है उसको लेकर के अपना खा रहे हैं। तो उसको क्या किया हमने, उसको समझा बुझा करके उसको क्या किया, शरीयत की कानून शरीयत की रोशनी में दे करके हमने उसको फिर क्या किया, उसको मस्जिद की हक को दे दिया। अगर किसी तरीके और कुछ खामी थी उसको पूरी करके उसको फिर दिया, या लड़कों को बच्चों को इसी तरह मुतवल्लिशित के बारे में उसको भी हमने हल किया इस तरीका पर। और आए मसाइल में से इसी तरीका पर जो है आपका कुर्बानी का मसला, नमाज, हज, ज़कात वगैरह वगैरह का अल्हम्दुलिल्लाह सब दिया उन्होंने, तशफ़ी वक्त जवाब पाके उन्होंने अमल करने लगे। ठीक है, तो जो आपने फतवा इशू की है उसकी कॉपी वगैरह भी आपने रखी हुई है आपके पास? हाँ सब है। सब है। तो जैसे ज़्यादातर मसाइल यही रहते हैं कि मियाँ बीवी के या मुतवल्ली के इस तरह के, या और भी कुछ मसाइल नहीं, आते हैं? सब मुख्तलिफ है। जैसे थोड़ा सा और डिटेल बताइए, मसाइल किस किस तरह के? नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब क्या आता है। इसी तरीके पर जो है आपका जो है नहीं, जैसे ऐसे बताइए कि भाई किसी ने हमसे ये सवाल पूछा और फिर आपने उसका ये जवाब दिया, वो क्या सवाल था वो और जवाब क्या था? एक आदमी उन्होंने अपने बीवी को एक तलाक दे दिया जी जी, और उनके पास जो है कोई रास्ता नहीं था, क्या करे, माने क्या कहते हैं बेचैन हो गए, बेसुकून हो रहे, तो उनको दिया गया कि अब कोई घबराने की जरूरत नहीं, एक तलाक रजी हुई है, ठीक है, तो आप उसके अंदर एक साथ रह जाओ। इसी तरीके पर है कि एक तलाक बायन हुई है, यानी बोला तलाक निकल जाओ, तो एक तलाक बायन हो गई, निकाह खत्म हो गई, तो फिर तलाक तो आपने बहुत बता दिया। नहीं वो अलग है। नहीं, तलाक का तो आपने बहुत बता दिया। मैं पूछूं और कौन कौन से मसाइल हैं जो लोग पूछते हैं आपसे और जिसका आप जवाब देते हैं,
जो आपका फतवा कहलाता है, और कौन कौन से मसाइल हैं? असल में वहाँ आने से तभी तो वहाँ कि कितना साल याद रहता है, पूरा जो है पूरे बंगाल के मसाइल आते हैं, ये खास करके सबसे ज्यादा जो है मियाँ बीवी में हम मिलाते हैं, बस यही सबसे ज्यादा होता है। इसकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं बना रखी है? हाँ? वेबसाइट वगैरह नहीं बना रखी है आपने जहाँ पे इस तरह की डिटेल मौजूद हो? जो हमारे वहाँ नहीं डाला गया है, लेकिन वहाँ डाला नहीं है, ऐसा तो कंप्लीट 1 साल का पूरा दे देते हैं इससे तो। हजरत आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे आपका कोई पेज वगैरह बनाया, जैसे कभी बच्चे बना देते हैं या खुद लेते हैं? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हाँ? कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 2, बच्चियाँ 3। अच्छा, सब जवान है माशाल्लाह? छोटा है हिफ्स कर रहा, अच्छा। एक हाफिज हो गया, पढ़ा। और बच्चियाँ? बच्चियाँ एक तो साइंस लेके हायर सेकेंडरी पास किया और शादी हो गई, जी। दूसरी भी वो हायर सेकेंडरी पास करे, उसकी शादी फिलहाल हुई है। हाँ, हाँ। और एक छोटी बच्ची। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कभी कभी यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो तृणमूल कांग्रेस की, क्या इनकी तरफ से कुछ इस तरह के मतलब कोई भी डायरेक्टिव आता है, कुछ ऐसा आता है आप लोगों के ताल्लुक से कि भाई आप लोगों को मदरसा में ये बात नहीं कहनी है, या ये बात नहीं, सब फुल फ्रीडम है? कुछ नहीं। अच्छा, जो आप लोग कोई तरह से पूरी ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं कि आप खुद मुख्तारी वो दे रखी है, ठीक है। कभी इससे रुकावट कभी नहीं, इस्लाम के खिलाफ या ये इस तरीके पर एक कानून बना देते हैं कि गाइडलाइन से इस तरीका बोलना होगा, इस तरीका, ये नहीं, बिल्कुल आज़ादी है। और हज़रत, क्या कभी किसी मिनिस्टर वगैरह ने या किसी भी बड़ी शख्सियत ने विजिट किया आपके दौर में इस हया मदरसा को? जैसे कौन कौन आए? पहले जो मिनिस्टर से वामफ्रंट के सीपीएम के ज़माना में जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जी, इस तरह का, फिलहाल जो है आपका जो है ममता बनर्जी, जी जी, इससे फिरहाद हकीम, इस तरीके पर आपका जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल सत्तार उस जमाना में, जी जी, फिर आया नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, जी जी, वो हमारे खसर भी होते हैं। अच्छा जी, वो माने लाइब्रेरी मिनिस्टर हैं। हाँ हाँ, इस तरीके पर उस कैंपस में इस तरीके पर और भी मिनिस्टर जो मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखते हैं वो भी आते हैं, उनके तरक्की। इसी तरह गुलाम रब्बानी फिलहाल जो अकालियत के जो मिनिस्टर है गुलाम रब्बानी वो भी है। और जो सेमिनार वगैरह या जो इस तरह के जो टॉपिक्स, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो किस किस तरह के रहते हैं, कुछ आपको याद हो? कि अरबिक के ऊपर है, माने अरबिक जो है इस बंगाल में इस तरह इंडिया में कैसे फैला, वर्ल्ड वर्सेस इसका क्या हैसियत है, ये भी रहती है। इस तरीके पर इंसान किसको कहते हैं, इस्लाम इंसान के तालीम किस तरह का दिया है, कहाँ क्या क्या है इस इंसानियत, इस तरीके पर है। आप हुआ था जुबान की क्या हैसियत है, हकीकत है। जब हम लोग बंगला रहते हैं तो बंगला ही असल है, अरबी है और है, एक तो अरबिक लैंग्वेज अलग है, यानी एज ए ऑल लैंग्वेज इस तरीके पर ये भी इसके ऊपर टॉपिक लेकर के हुआ है। जी जी, इस तरीके पर और एक मरतबा हुआ था क्या है मदारिस के बारे में। जी जी, ये मदारिस जो है इसका फायदा क्या है, स्कूल में क्या है, तो हम लोग स्कूल से अलग है या ये है, हम लोग क्या करें, इस तरीके पर इसके ऊपर, यानी पूरी दुनिया से सऊदीया से, यानी ताल्लुका से बांग्लादेश, अफ्रीका, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह से सब पे चल के पाया। हाँ हाँ। और एक जो थोड़ी सी दिक्कत मैंने महसूस की, जो ख़ास तौर से आप लोग मदरसा बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक नज़र आती है मुझे, अंग्रेज़ी, और अंग्रेज़ी ज़बान का ज़माना एक ज़माने से है। ऐसा नहीं है जी, असल में हम लोग यहाँ पर तो बंगाली लैंग्वेज में पहले तो उर्दू बंगाली मिला मिक्स करके, और यहाँ पर हमने कन्वर्सेशन इंग्लिश यहाँ पर नहीं है, जिस बिना पर हम लोग बिला झिझक नहीं बोल पाते। और लेकिन अब दूसरा इसमें जाइएगा इंग्लिश वाला डिपार्टमेंट में वो बोल देंगे इसी तरीके पर। और जो है जहाँ पर इंग्लिश इसमें होता है जी, इसमें आपका नहीं स्मार्ट मालूम होगा। मेरा सवाल ये था कि
आप लोगों ने कभी क्यों कोशिश नहीं की इंग्लिश सीखने की उस तरह से, मतलब आप लोग नहीं, काम चलाने के लिए बोलने की थोड़ा बहुत आपके काम ले ये है, उसमें तो कोई ये नहीं है। जैसे मतलब कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश ज़बान में टेंसेस होते हैं, टेंसेस, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या हाँ, कह रहा हूँ? क्या मैं तो होता पढ़ा हुआ है टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, उसके बाद और ये है। हाँ हाँ, लिखी भी जैसे हाँ, हाँ, हाँ। अखबार वगैरह में भी हाँ। समझ लेते हैं, खबर वगैरह तो उसके अखबार कौन अखबार आते हैं यहाँ पर? हाँ। आप लोगों की लाइब्रेरी होगी भी यहाँ पर? अखबार बांग्ला ज़बान के, उर्दू के, इंग्लिश के सब आते हैं? ठीक है। और हजरत मैं आपसे क्या पूछूँ से थोड़ा हाँ, नहीं 10 मिनट और के अंदर आपको प्लीज हमको एक जो है शिकायत ये है यहाँ पर कि जो यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर्स हैं जो बहुत वक्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है या उनकी थोड़ी सी कम सुनी जाती है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने कभी कोशिश की हो, स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा हो कि भाई ये तो बहुत कम तनख्वाह है, इसमें काम नहीं होता? देखिए, ये तो ऑटोनॉमस बॉडीज है, जी, तो पार्ट टाइम में हम भी हैं, जी, ठीक है। हम भी यहाँ 2 ग्रुप है। हाँ। एक तो है जो यूनिवर्सिटी बनने से पहले जो कॉलेज थी उस वक्त से हम लोग जैसे हैं, हाँ। वो अभी 10 है, और यूनिवर्सिटी बनने के बाद 2 साल बाद, और जब कि पढ़ाने के लिए फिक्स और क्या मैंने फुल टाइम कोई नहीं थे, ठीक है, जी। उस वक्त भी लेना पड़ा। तो गोया के सरमाया हम ही लोग थे सब, हाँ हाँ, मैंने कॉपी देखना, पढ़ाना, इसे चेक करना, रिमोटेशन करना, सब काम हम लोग का करना है। यहाँ तक कि कोई हेड नहीं तो हेड के काम भी उसको देखना पड़ता है। हाँ। तो बाहर तो इसके बारे में इस पे जो पहले वीसी थे उनके पास दरबार किया गया, वो बोला देखेंगे, कुछ नहीं किया। दूसरा जो वीसी आया अबू तालिब खान साहब, उन्होंने क्या किया, हमारे बारे में सोचा और बोला कि पहले तो इसको करना चाहिए था। तो गोया कि ऐसे हो गया आप लोगों का हालत, इस तरह का एक शीशा है उसको तोड़ करके जो मैंने बिल्कुल पार कर दिया, बिल्कुल क्या है चूरा हो गया, जोड़ना जैसे मुश्किल, इस तरीके से फिर भी हम कोशिश करेंगे। उन्होंने फिक्सेशन कर दिया और फिक्स मैंने फुल टाइम पार्ट टाइम कर दिया, मैंने वो साल भी सब करके एक मतलब थोड़ा पैसा ऑफिस सैलरी वगैरह भी बढ़ी। हाँ नहीं किया। जी। उसके बाद क्या कि हर साल या 2 साल 3 साल आपको जो है इंक्रीमेंट होंगे, उसको भी करके दिया। हो रहे हैं इंक्रीमेंट इस तरह से हर साल 2 साल 3 साल के बाद? 3 साल के बाद 5% बोला था, एक मरतबा हुआ, उसके बाद नए जो वो तो चले गए, इसके नए जो बीसी है वो नहीं कर रहे किसी तरीके पर। तो हम लोग इसको बढ़ाने को हम पैसा देते हैं, लेकिन वो बोलते हमसे नहीं होगा, ये फिनेंस के बाद वहाँ से करना होगा वगैरह, इसी के जरिए से हम नहीं कर सकते। हालांकि इनको पता नहीं क्या है, तो हमने समझाया सारे मिनिस्टर से, ये कीजिए वो कीजिए, जो हमारे डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है और ग्राम रमन से वहाँ जाइए, तो वो नहीं कह रहे कि हम लोग उनको साथ लेकर के इमी डिपार्टमेंट में गया, वो जवाब मामा ये दिया, करते फिर हायर उसमें गया, जा करके एक लेटर आया, आप जो है हमारे यहाँ पर एक जो है ये चल रहा है, चलिए एहतजाज कि हम लोग को पूरा जो है जिस तरीके वो लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा करते हैं, पहले से करते हैं, हम जो एंसेंट हैं, लिहाजा हमको हमारी हक पूरी देनी होगी। तो उन्होंने बोला देखा जाएगा, इसके साथ किसी मिनिस्टर के साथ और दफ्तर में हमने ये किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो है दावी और दावा बिल्कुल हक है, वजह है, आप लोगों के साथ है। इस तरीके आज भी हम लोग ऊपर मीटिंग इसी के बारे में कर रहे थे, इस तरीके आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो जो एक और बात कि जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में इस वक्त फिरकावागियत की वजह से बहुत बड़ी परेशानी दरपेश है। खुद वेस्ट बंगाल में भी एक तरह से फिरकावागियत जो है कभी कभी वैसे वाक़यात हो जाते हैं। तो मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के बीच में ब्रिज हो, थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो, जो तनाज़ातें कम हों, कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम हो जाए, इस पर है। इसके ताल्लुक से भी कुछ कोशिश करते हैं आप लोग? हाँ सुनिए जी, तो हमारे मासा की जानिब से और पूरे बंगाल की तरफ से बोलते हैं, पूरे बंगाल में हम लोग जमीयत उलमा के साथ एक पूरे बंगाल में मदारिस के एक राबित मदारिस इस्लाम दारुल देवबंद में से एक किया है। इस तरीके पर यहाँ पर मसा में सबसे हिदायत है, तकरीबन 1200 मदारिस है
और भी है, हमारे इसमें छाया में नहीं आया, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक है। ये लड़की आकिमा से वहाँ कहा हुआ है, जो भी प्रोग्राम होगा अपने इलाका के जो हिंदू भाई है उनको साथ लो, यानी उनको गेस्ट करो, गेस्ट के एतबार से उनको दावत दो, वो आए अपने जमीर की बातें कुछ बोले। इस तरीके से हमारे यहाँ पे आए कोई हाँ, ये तो आते हैं बहुत सारे। कौन आए? हाँ? कौन जैसे? ये जो मिनिस्टर जो हिंदू नहीं, मिनिस्टर तो अलग हो गए, हाँ। सरकार के लोग हो गए। हाँ? वो तो सरकार के लोग हो गए, मिनिस्टर लोग। हमारे जो सेमिनार होते हैं वहाँ अक्सर हम हिंदू को जैसे कौन आता है? प्रोफेसर या इस तरह के? मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, जैसे SNGBS के हैं, इसी तरीके पर है आपका क्या बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है। जी। इस तरीके पर आपका जो है विश्व भारती जो बीरभूम में है। जी। यहाँ से हमारे यहाँ से PhD का जो ये होता है ना रजिस्ट्रेशन, हाँ। हम उनको बुलाते हैं। अच्छा। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।